Hi everyone. If in 2006 you would have told me that I would do a football podcast and that too leading our way with the United chants, I would have been dreaming from my भाई पहले तो सारे पुणे वाले वेरी सॉरी यार तो आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये क्यों इतना सब होस्ट कर रहा है भाई क्यों नहीं करूं जैसे तैसे तो हमको मिले जैसे तैसे तो हमको एक यूनाइटेड का फैन क्लब मिला है व्हाई वुडंट वी डू इट so here we are at the 3 o'clock cafe in collaboration with MUSC Manchester United Surat Fan Club. I hope मैंने सही बोला है ना so we are here with them we doing a football podcast we gonna be talking about obviously United but a lot of other things that is going around in the current football circuit and we're gonna have a lot of fun. So firstly guys welcome Swayam, Jigar bhai, Prem bhai, Mudit and Saurabh bhai, welcome to the show. Thank you so much for actually accepting our invite. I mean, to be very honest, usually in specifically in our city, I do not know, man. People are not taking podcasting or football very seriously. But thank God we are a bunch of people who getting together and we doing something of this sort. Moving ahead, my first question is to the two of you because I met them, I think in January, right? Right. One day before the Uttarayan, right? Correct. I just met these two boys, and they were like, they run this club and they want to do this. I was like, भाई तुम लोग कहाँ थे इतने साल से 10-12 साल से ठीक है? Please tell everybody your age and why did you start the supporters club? So you can go first. Actually, I and Mudit, we met at a cafe where there was already a screening going on for Man United versus Arsenal. And I think we both love Man United the way we love our family. So Man United is our family. So Mudit once came with an idea कि यार मुंबई में और अहमदाबाद में और ऐसी जगहों पे भाई इतने सारे स्क्रीनिंग्स होते हैं दे आर लाइक क्रेजी स्क्रीनिंग्स 100 पीपल कम बट सूरत में कोई ऐसा कल्चर क्यों नहीं है Right. एंड आई वाज लाइक स्टार्ट करते हैं व्हाई नॉट अस When was this? This was, I think, the first game of Man United this season. Man Okay. United versus Arsenal, the first game. Right. Where we lost 1-0, I guess. But, yeah, जो हो सकता है भाई खराब हो गया था पर गेम अच्छा था भाई चलो वो मैटर करता है एंड द थिंग इज कि वी थॉट अबाउट दिस आइडिया हम लोगों ने सोचा कि हम क्या क्या कर सकते हैं एंड एक्लिप्स कैफ़े वाला था वो एक्लिप्स कैफ़े हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इस चीज़ में ही गेव अस द स्टार्टिंग कॉन्टैक्ट्स 25-30 पीपल से वो कम्युनिटी स्टार्ट हुई एंड इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स अबाउट 300 पीपल Wow. so yeah, in just 4 or 5 months, I guess it's just 10 times. Right. So I am 19 years old. My name is Swayam Nihalani, and I'm one of the founders of MUSC Surat. So basically, I met back in September, I guess we met. So Yeah. So basically, हमारा genuinely एक ही idea था कि the way we support Man United, right? That what matters to us the most. कि जिस तरह से हम लोग ने एक साथ matches देखे, जो experience हमने feel किया, we wanted to give something like that to the city और सूरत तो जैसा राइटली स्वयं ने बोला कि मैंने देखा था कि मुंबई दिल्ली बैंगलोर जैसी सिटीज़ में ऑलरेडी होते थे ये सब फैन क्लब्स और ऑलरेडी ये सब बने हुए थे तो यही हमारा मकसद है ये क्लब को चालू करने का कि जितना हम लोग जॉय क्रिएट कर सके सिटी में फॉर द फैंस ऑफ यूनाइटेड फॉर फुटबॉल फैंस इन जनरल एज वेल तो उतना हम लोग क्रिएट करें और ऑब्वियसली आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि कैसे हम लोग स्क्रीनिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इट्स गोइंग ग्रेट सो फार एंड माय एज इज 25 एंड माय नेम इज मुदित अग्रवाल Perfect, man. I'm 30 and I feel ashamed, bro. I couldn't do anything of this sort at 19. But great initiative. I've also studied in Pune, so it just I do not know. There was so much nostalgia on 13th or 14th of January when we met the first time, and I just had to do it. Sorry, I think we are I think a month late to this podcast. We were supposed to do it like 20-25 days before. Yes. Very sorry for that. But quickly, guys, one great memory if you guys have already seen a match with them, and one crazy memory. Jigar bhai, you can go ahead. आई एम थैंकिंग यू बिकॉज अगर 25 दिन पहले आपने पॉडकास्ट किया था तो आई वुड हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ दिस क्लब सो आई जस्ट जॉइन लाइक 15 days बैक मैं सिर्फ 2 स्क्रीनिंग में आया हूँ एंड द फर्स्ट स्क्रीनिंग एस्टन विला वाला
इट वॉज मैग्निफिसेंट। सी मेरे को ऐसी आदत है ना कि इतना पैशन से देखता हूँ मैं। घर पे भी मैच देखता हूँ ना तो मैं बैठ नहीं पाता, मेरे को खड़े खड़े देखना होता है। रात को 1:30 बजे पूरे बिल्डिंग में मेरी आवाज़ आती है जब गोल होता है, अच्छा। चिल्ला के आवाज़ आती है। सो मेरी बीवी उठ जाती है एंड शी इज़ लाइक ये क्या कर रहा है तू। एंड व्हेन आई सॉ दिस, उनका ऐड देखा एंड सी मैंने लगा कि मेरे सिमिलर फीलिंग्स जो शेयर कर रहे हैं वैसे बंदे मुझे मिल रहे हैं। तो जब फर्स्ट गोल हुआ था, जो कैसेमीरो ने गोल किया था, तब जो सेलिब्रेशंस हुए थे, दोज विल बी लाइक अ कोर मेमोरी फॉर मी, बिकॉज ये दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई स्क्रीनिंग देख रहा हूँ। उसके पहले जो भी देखा था इट वाज ऑलवेज विद फ्रेंड्स, 5-10 फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, बट दिस विल बी लाइक होपफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर मी। मैं भी सूरत काफ़ी टाइम से हूँ, बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। आई एम स्टिल न्यू एट दिस, बट लेट्स होप लॉन्ग टर्म आपका चले। अरे हम लोग पूरी फैमिली है। डेफिनेटली। चलो प्रेम भाई। वेल इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग्स तो मैं पहले बैंगलोर में रहता था, राइट, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ स्क्रीनिंग्स। वहाँ पे ये मग्स में कुछ और ही होता होगा। True that. And I think ये जो कम्युनिटी है जो हमारी ग्रो हो रही है, it would have been 10x अगर something ये मग में कुछ और होता था। अभी कप में कुछ और होता था। Anyway, so बैंगलोर में I have, as I said, lot of screenings मैंने अटेंड किया। फिर when I moved to सूरत तो I didn't have too many hope, बहुत ज़्यादा होप्स नहीं थे मेरे, बिकॉज कंपैरेटिवली सूरत जो है काफ़ी स्मॉल सिटी है एंड मुझे कोई मिला भी नहीं था कोई फैंस ऐसा। बट सडनली while browsing again I saw वो Eclipse Cafe वाला, एंड जो मैंने पहला स्क्रीनिंग अटेंड किया था दैट वाज सिटी वर्सेस यूनाइटेड एंड वी लॉस्ट 3-0। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट स्क्रीनिंग, बट सी आई लव यूनाइटेड। मैं लगभग 25 साल से आई एम अ फैन। ठीक है, I've been a fan since 2002 actually, right, so तब से मैं फैन हूँ। so and I've been very passionate about United, right, so जब मैंने पहली बार अटेंड किया स्क्रीनिंग तो फिर मुझे I just felt connected to this community, Right. ठीक है, and उसके बाद तो फिर I have hardly missed any screenings, right. ठीक है, I have hardly missed any screenings, ठीक है, and मेरा best moment अगर बोले तो that was very clearly Arsenal versus United, ठीक है, we won 3-2 and that goal by Cunha, it just That was a crazy match. ठीक है, एंड वो हमारा सिग्नेचर सेलिब्रेशन बन गया है। अच्छा। ठीक है, आफ्टर एवरी विन We do that. and Swayam we do this celebration, surfing celebration, so glory United. सौरभ? मैं तो एक्चुअली स्टार्ट आई वेंट टू स्क्रीन फॉर लिवरपूल। Right. मैंने वहाँ पे देखा यहाँ के कोई बंदे थे नहीं यूनाइटेड वाले, और बहुत अच्छा। ऐसा फील हो रहा था कि क्यों नहीं। वन डे आई जॉइंड MUSC, ही टेक्स्टेड मी कि ब्रो यू आर कमिंग ऑन स्क्रीनिंग और नॉट। आई सेड आई विल कमिंग। यहाँ पे आके जो एनर्जी वाइब मैच हुई, जो इतना एनर्जेटिक माहौल होता है, आप अगली स्क्रीनिंग में आओ आप खुद वो फील करोगे। एस्टन विला वाला मैच इतना क्रेजी मैच था, इतनी अच्छी वाइब्स थी कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब आपका मैच भी खत्म होगा और आपको वापस जाना है। इन शॉर्ट हम वेट करते हैं कि अगली स्क्रीनिंग कब है, अगला मैच कब है यूनाइटेड का। नॉर्मली ऐसा रहता है कि यूनाइटेड कब खेलेगा, वैसा कि हम कब जाके वहां पे देखेंगे कि यूनाइटेड खेलने वाली है। The entire build-up. The first one that I saw was, I think, the derby, no? Yeah, City versus City was. और मैं वहाँ गया zero hopes के साथ। देखो, to be very honest, how much ever United fan I am, I've been following it since I started watching football in 2006. Then I went to my boarding school, so लगभग 2006 और 7, right? तब से यूनाइटेड को फॉलो कर रहा हूँ। ज़्यादा समझ ही नहीं थी फुटबॉल के बारे में, तो दोस्त जो दिखा रहे थे वो देख रहा था। पर करते करते आप आज भी मुझे कोई मेरा फेवरेट प्लेयर पूछेगा तो मेरे लिए रायन गिग्स है। मुझे लगता है कि जैसे राहुल द्रविड़ है क्रिकेट में, वैसे रायन गिग्स है। मतलब कोई भी उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ द वे ही प्लेड द गेम, राइट? True. तो मैंने वो फॉलो करना चालू किया। मैं वो टाइम से हूँ। उसके बाद पता नहीं क्या आ गया, जीत ही नहीं रहे। तो मेरा एक दोस्त है लक्ष्य, मैंने बोला भाई देखे क्रेजी लग रहे हैं बॉयज, ये कुछ क्रेजी कर रहे हैं हम। सो वी ऑल्सो वांटेड टू डू स्क्रीनिंग्स, पर स्क्रीनिंग्स के लिए वो मोटिवेशन डिसिप्लिन आए कहाँ से? 2-4 जीते तो आए। मैंने लक्ष्य को बोला चलते हैं। उन लोग ने बहुत लंबी बातें कर ली, मैंने भी ढेंगे मान लिए कि हम आएंगे। मैंने तो टिकट्स पहले ही ले ली। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। मैंने मेरे एक दोस्त को फोर्स भी कर दिया उनके लिए कुछ और करने के लिए भी। दे आर प्लानिंग अ टूर्नामेंट। मैंने बोला वहां पे भी पैसे डाल दो पहले ही, ठीक है। हम वहां पे गए, जीत गए। ये तो दिमाग खराब हो गया। मैं तो पहले तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है मेरे को कि डर्बी जीत गए, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला चल ठीक है। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि है ना, तब से
आई थिंक चेंज हो गया, तो मैंने मजाक में उनको बोल भी दिया कि भाई तुम लोग ने पता नहीं क्या कर दिया, वो लक थोड़ा चेंज तो हुआ है। बहुत लोग एक्चुअली हमको ये बोलते हैं कि ये जब से हम लोग ने ये luck change हो गया है। यूनाइटेड का पूरा नाम Have we बदल lost गया है। since? One, no, maybe One, just one, one, yeah, just one, one. right? Newcastle के So against. अभी मुझे ऐसा है कि मेरे को जाके जिंक्स नहीं करना। Yeah, किसी दिन of मैं गया और course. हार गए तो मैं उससे भी डरा हूँ। प्लस शेड्यूलिंग ऐसा है कि वीकेंड्स आ जाते हैं तो, बट आई डेफिनेटली वांट टू अटेंड मोर। But okay, that is that. We need to move on to what do you guys think about the current United situation? I think it is on the way up, barring the few points that we are losing on the way. But Saurav, you go ahead. What do you think about the current United situation? As far as I am seeing United, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, आई एम श्योर कि सेकंड पोजीशन आ सकती है अगर वो आगे जाकर चोक नहीं करे, बॉटल नहीं करे, क्योंकि सिटी का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। Okay. और टॉप 4 तो श्योर दिख रहा है क्योंकि 7 मैचेस अभी भी पेंडिंग आई गेस। Yes. 7 points चाहिए खाली। 21 पॉइंट्स में हमको 10 पॉइंट्स चाहिए टू क्वालीफाई फॉर चैंपियंस लीग। Right. इस दौरान सेकंड मेरे हिसाब से आ सकती है और अच्छा खेल भी रही है, काफी अच्छा खेल रही है। Right. For me personally, I am very happy with the current situation for United because अगर आप मुझसे ये चीज़ 6 महीने पहले पूछते तो I would have easily happily taken की top 4 for United because आपने भी देखा होगा कि 3 महीने पहले हमारी हालत इतनी बुरी थी कि हम लोग को मैनेजर्स भी चेंज करने पड़े थे। Yeah. So जब से कैरिक आया है तो मतलब उसने लाइफ बदल दी सही में। मेरा मेंटल हेल्थ बेटर हो गया है कैरिक। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, आपने अपनी वाइफ के बारे में बोला पीपल आर स्लीपिंग बेटर, पीपल आर डूइंग बेटर वेकेशन, पीपल आर सेइंग कि भाई मतलब सिंस लास्ट मतलब इंडिया भी अच्छा खेल रहा था क्रिकेट में और ये भी कर रहा था, हस्बैंड बिरादरी में सब खुश चल रहा है आजकल। भाई यूनाइटेड जीत रही है, इंडिया जीत रही है, प्लीज कंटिन्यू। सो बेसिकली वही है कि आई एम वेरी हैप्पी विद द करंट सिचुएशन। पीपल से कि हम लोग को सेकंड आना चाहिए, थर्ड फॉरगेट दैट। मेरे को लगता है कि टॉप 4 भी आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी विन है वो, बिकॉज आई थिंक हम लोग ने चैंपियंस लीग यार अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम से देखा नहीं है। मी एज अ फैन आई एम क्रेविंग फॉर अ चैंपियंस लीग मैच। हम लोग बाकी टीम्स को देखते हैं, हमको जेलस फील होता है, मतलब कैसे कि रियल मैड्रिड बारसा जैसा खेलती है। बट आई फील कि नेक्स्ट सीजन डेफिनेटली यूनाइटेड आर गोइंग टू बी बैक इन द चैंपियंस लीग, सो होपफुली सब बेटर होगा नेक्स्ट सीजन। और ऑल्सो होपिंग कि मैनेजर भी जो आएगा या तो कैरिक भी होगा, आई डोंट नो, वील डिस्कस दैट लेटर, बट अच्छा होगा। मतलब आई हैव अ गुड फीलिंग कि यूनाइटेड विल बी बैक लाइक जैसे हम लोग पहले थे प्री 2014 एरा में थे। सो वेटिंग फॉर दैट। We will be back. या ऑफ कोर्स वी आर सो बैक। See, मुदित ने तो मोस्टली सारा पॉइंट कवर कर ही दिया। जस्ट आई विल ऐड जस्ट वन वर्ड, वी विल डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग। बस ये है कि जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गेट थिंग्स राइट फॉर नेक्स्ट सीजन, ठीक है। एंड गाइज नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग की स्क्रीनिंग्स विल बी देयर, एवरी मैच। टॉप 4 तो अब तो नेल्ड ऑन है, उसमें कुछ बचा नहीं है। 2-3 मैच भी अगले 3 मैच में हो जाना चाहिए। बट जनवरी 3rd या 4th जब एमोरिम को निकाला था तब किसी ने अगर ऐसा बोला होता व्हाट ही सेड एग्जैक्टली, तो आई वुड हैव टेकन कि हाँ मेरे को 5th पे भी क्वालिफाई हो रहा है ना गोल डिफरेंस पे तो भी मैं चला लूंगा। हाँ चैंपियंस लीग चाहिए, बिकॉज चैंपियंस लीग के बिना ये मिडवीक के बिना यूरोपा नहीं होता है यार। यूरोपा में इतनी घटिया टीम होती है ना, चैंपियंस लीग इज अ मस्ट फॉर अ टीम लाइक यूनाइटेड। एंड ये सीजन जो अभी चल रहा है नेक्स्ट थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कैरिक की वजह से थोड़ा डाउनफॉल है, बट नेक्स्ट 4-5 मैचेस अगर थोड़ा पिकअप हो जाएगा वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग फिनिश। सेकेंड सिटी का बॉल जो भी अभी खेल रहा है ना, एवरीबॉडी हैज फिगर्ड दैट आउट। तो सिटी का थोड़ा मुश्किल है, तो वी हैव अ गुड चांस ऑफ कैचिंग देम अप। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सेकंड आए तो अच्छा है, ओले जैसा वापस सेकंड फिनिश करेंगे, लेट्स होप उसके बाद का सीजन वैसे ना हो। As you said, you remembered me of Ole. ओले का जो फर्स्ट ईयर केयरटेकर मैनेजर था, इट्स वेरी मच सिमिलर टू माइकल कैरिक, एंड आई फियर दैट, क्योंकि उसके बाद एक सीजन अच्छा गया बट देन ऑल वेंट डाउनहिल। तो आई थिंक अगर ऐसा वापस हुआ माइकल कैरिक के अंडर तो इट विल बी आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटिंग। I would love कि Michael Carrick takes the job, becomes a permanent manager, and then take us to the Premier League title. It will be a fairy tale for me, but अगर ऐसा होता है तो I will be very grateful, but it's very concerning for me कि पिछले 4-5 games में let's say हमारी intensity is very much dropped.
जो एमोरिम ने वो लाया था इंटेंसिटी, दैट इज वेरी ड्रॉप्ड. हाँ, हम लोगों ने सेंसिबल फुटबॉल खेला है, बट आई एम वेरी कंसर्न. जो फुटबॉल जो 4 पिछले मैच हुआ था, 5वां मैच तो बहुत अच्छा हुआ, चौथे जो 4 मैच थे, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दैट कि अगर वो कंटिन्यू होता है, सो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इन फ्यूचर. Okay. I personally feel, see, you guys come across people who feel the entire nervous system of United, right? You guys come across little geeks, right? You guys understand in and out. I'll tell you how I perceive football, okay? I think United is one of the biggest ambassadors of football, like across the globe, right? I think how if I put अगर मुझे फुटबॉल को मार्केट करना है, I think it's literally comes down to 4-5 names or brands. Ronaldo, Messi, either way, whatever you guys want to put it, right? आप ऊपर मैसी रख लो, रोनाल्डो मेरे लिए रोनाल्डो, but anyways, वो एक different debate podcast है है, वो, of course. ठीक है? रोनाल्डो, मेसी, यूनाइटेड, मैड्रिड is what I feel कि ये जो 4-5 ब्रांड्स है दुनिया में, उसकी वजह से फुटबॉल एक एम्बेसडरिंग होता है उसका, राइट? पिछले इफ यू सी द ड्रॉप, यूनाइटेड जब ड्रॉप होती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ whatever the performances, the not winning the league for such a long time and everything, I think football as a sport, जहाँ पे India is driven by 4-5, like India में आज you won't find FC Porto के बहुत सारे fans होंगे, आई एम श्योर, पर परसेंटेज वाइज 100 टाइम्स कम होंगे, राइट? तो यूनाइटेड का एक वो फॉल, आप मानोगे नहीं, देयर वाज अ टाइम वेयर like anybody who doesn't even follow football properly would know at least 10-12 names of the team, right? From the team. There was this time when somebody like me, I wouldn't know, because इतने तो चेंज होते जा रहे हैं. There isn't a consistently, भाई आज कासा भी इतना टाइम रुका, तब जाके अभी भाई नो कासा कभी भी हेडर तो मार देगा, राइट? तो इट टुक सो मच टाइम. आप रोनाल्डो को वापस लेके आए, तब वापस आई बॉल्स लाए, फिर वापस चला गया. तो मेरे लिए तो क्या है ना, मैं एक थोड़ा ग्रेटर पिक्चर देख रहा हूँ. बेटर यूनाइटेड परफॉर्म्स, इट्स अ बेटर मार्केटिंग टू फुटबॉल. यू नो, आज मेसी को देखने के लिए कैलकाटा के ग्राउंड में 150 करोड़ कैसा देखा, वो पूरा जो इशू हुआ वो अलग स्टोरी है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक यूनाइटेड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यू गाइस वर मेंशनिंग अबाउट मैनेजर्स, आई फील कैरिक शुड स्टे. व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुदित? सो बेसिकली यार इसमें दो चीज़ है. एक तो फर्स्टली द वे कैरिक ने यूनाइटेड को बदला है, तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि उसको रहना चाहिए. बट पीपल आर सेइंग दैट कि कैरिक को चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, एंड नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग होने वाला है यूनाइटेड का, एंड वी आर गोइंग टू बी सो बैक कि उसमें FA कप भी होगा, कैराबाओ कप भी होगा, तो इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल जाने वाली है नेक्स्ट सीजन में. ऑल्सो हमको स्क्वाड डेप्थ का बहुत ज़रूरत है, बिकॉज अभी यूनाइटेड के पास क्या है कि सिर्फ हफ्ते 10 दिन में एक मैच खेलती है. नेक्स्ट सीजन उसका डबल होने वाला है सीधा. लाइक वी आर गोइंग टू लिटरली प्ले फुटबॉल इन एवरी नेक्स्ट 2 or 3 days. मतलब संडे को खेलेंगे, वेडनेसडे को वापस से मैच होगा, वापस से सैटरडे को मैच होगा. सो एक वीक में कम से कम हम लोग 3 मैच खेलने वाले हैं, राइट? तो फॉर मी इट्स वेरी नेसेसरी कि हम लोग एक ऐसा अगर चेंज भी करते तो एक ऐसा मैनेजर लाए अपनी टीम में कि जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, ओवरऑल फुटबॉलिंग नॉलेज हो, नॉट जस्ट कि प्रीमियर लीग बट उसका चैंपियंस लीग में भी बहुत अच्छा, उसने कभी प्रूवन मैनेजर. क्या मतलब, ये तो है, एवरीबडी वांट्स अ गुड मैनेजर, मैन, एवरीबडी, राइट प्रेमा, एवरीबडी वांट्स, पर है क्या, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस बहुत सारे हैं. जैसे कि अगर आप दूसरे टीम्स के मैनेजर्स को देखोगे एंड इंटरनेशनल टीम्स जो भी है उसके मैनेजर्स को भी देखोगे, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. अब उन मैनेजर्स पे भी है कि दे वांट टू कम टू यूनाइटेड एट सच अ इम्पॉर्टेंट स्टेज की फैंस आर एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम देम, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग भी आ गया है. सो चैंपियंस लीग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो कैरिक के लिए गलत नहीं हो जाएगा? मतलब टेक्निकली नहीं, कैरिक see- आपको क्वालिफाई करा रहा है? नो, आई डोंट फील सो. गलत होगा बिकॉज यूनाइटेड के बोर्ड ने मैनेजर से बहुत क्लियरली बात किया था अपॉइंटमेंट के टाइम पे कि इवन इफ यू क्वालिफाई एज फॉर द चैंपियंस लीग, जरूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट सीजन भी मैनेजर हो. और आई थिंक उसके वजह से ही हम लोग ने कैरिक को चूज किया. बीच में बात थी कि ओले को भी हम लोग कर सकते हैं, बट ओले की शर्त ये थी कि अगर मैं टॉप 4 के लिए जाऊंगा तो मेरे को परमानेंट करोगे तभी मैं मैनेजर हूंगा. बट यूनाइटेड बोर्ड ने वो नहीं माना है, तो उसके वजह से ही हम लोग ने कैरिक को अपॉइंट किया है. सौरभ, So, yeah. so
जो मुदित ने समझा है ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कैरिक इज अ केयर टेकर। Yes, वो correct. ध्यान रखने आया है कि जो भी प्लेयर्स है उनसे ही मुझे 6 महीने खिलवाना है, उनको बेस्ट यूटिलाइज कैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ छेड़ना नहीं है। दे आर कंफर्टेबल विद द बैक फोर तो मैं बैक फोर खिलाऊंगा, विंगर्स को इधर खेलना है, इसको इधर ब्रूनो को 10 में खेलना है तो मैं 10 में ही खिलाऊंगा, मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं। सो प्लेयर्स आर हैप्पी, दे आर परफॉर्मिंग। बट आई थिंक दिस कैन ओनली टेक यू अप टू अ सर्टन लेवल, जो ओले ने किया था। ओले ने भी यही एग्जैक्टली किया था, और हम अभी, इफ टू पुट इट ब्लंटली, वी आर जस्ट अ काउंटर अटैकिंग टीम। से बता दो तो लो ब्लॉक तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम सेट पीसेस से खेल रहे हैं। सो मेरा ऐसा विश है कि इफ़ वी वांट टू बी रियली बैक, वी वांट टू चैलेंज फॉर द बिग टाइटल्स, प्रीमियर लीग है, चैंपियंस लीग है, इफ़ यू वांट टू गो फार, वी नीड टू हैव द बेस्ट कोच पॉसिबल। ठीक है, अभी टुकल है, अगर इंग्लैंड बहुत ही खराब खेलता है तो ही इज़ एन ऑप्शन। एंचेलोटी है, अगर ब्राज़ील बहुत ही खराब खेलता है ही बिकम्स एन ऑप्शन। सिमिलरली पोचेटिनो, Why you saying बहुत खराब खेलता है तो? या तो बहुत अच्छा या तो बहुत खराब। अगर बहुत खराब खेलेगा तो उनको सैक होने के चांसेस है। वैसे हो। वैसे अगर बहुत अच्छा खेलेगा और जीत गया तो वो लोग बोलेंगे मैंने जीत लिया, आई एम आउट नाउ। आपत्ति में आविष्कार ऐसा। हाँ। वैसे सो पोचेटिनो है वैसे यूएस का। सिमिलरली मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर पीएसजी बैक टू बैक जीत जाती है, ठीक है, तो एनरिके बोलेगा अब मेरे को करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इतने साल से पीएसजी जीता नहीं था, मैंने 2 जिता दिए, अब मैं दूसरे चैलेंज पे जाऊंगा। सो ऐसा कोई अगर अपॉर्चुनिटी आता है तो आई थिंक वी शुड गो फुल ऑन फॉर एनरिके। एंड अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो कहीं और रिस्क लेने की जगह पे तो फिर कैरिक से कंटिन्यू, तो ही कैरिक को कॉन्ट्रैक्ट दो। बट कैरिक का वैसा है ना कि ही हैज जस्ट बीन अ मैनेजर इन द चैंपियनशिप, और वह कुछ है नहीं, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। And I think कि Luis Enrique is a top target क्योंकि he has shown interest in United and there are very much rumors कि he is leaving PSG. As you said कि Carrick championship manager रह चुका है, so we need to replace him. उसको best replacement is Luis Enrique because I love the way he plays football. कि मतलब he doesn't play, he makes the team play football क्योंकि he has that style of tiki taka from Barcelona. He has that possession based football which is loved in La Liga, but I think it can also work in Premier League. जैसे गार्डियोला ने वर्क कराया था, लुइस एनरिके भी वर्क करा देगा बिकॉज क्योंकि हमारे पास फिजिकलिटी तो है ही हमारे प्लेयर्स में, पहले नहीं थी, पिछले सीजन नहीं थी, इस सीजन वी हैव डिलिक्ट है, मैगवायर है, कैसेमीरो अब जाएगा पर उसकी जगह आई गेस ब्रूनो गुमारेस। ऑलमोस्ट भाई ब्रूनो गुमारेस आने वाला है अभी अपनी टीम में, दैट इज ऑलमोस्ट फाइनल, द डील इज ऑलमोस्ट डन ऑन द प्लेयर्स एंड। एंड कुछ न्यू साइनिंग्स दैट आई वुड एक्सपेक्ट इज वन मोर मिडफील्डर। इफ ब्रूनो गुमारेस आता है तो उसके साथ आज प्रेम भाई ने व्हाट्सएप पे लिख दिया था आंद्रे भाई, मैंने उसके हाइलाइट्स देखे, आई लाइक्ड हिम एंड हाँ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, जॉइन वेल, We will put the link here. यस विल पुट द लिंक एंड हम भाई उस व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत ज़्यादा बकचोदी करते हैं, आप लोग आओ, यू जस्ट जॉइन। एंड द थिंग इज आई वुड लव ब्रूनो गिमारेस एंड एडम वॉर्टन स्लैश आई गेस वी हैव ऑप्शंस कौन से, बलेबा है और सी कार्लोस बलेबा टोनाली है, है, वॉर्टन है, टोनाली है, एंजेलो स्टिलर है। एंजेलो स्टिलर है, ठीक है। बट ब्रूनो गिमारेस लाएंगे तो फिर स्टिलर के साथ Why not? how will I they think link up? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ना। गुमारेस जो है इज मोर लाइक अ हाइब्रिड, ठीक है। गुमारेस इज नॉट अ Box to प्रॉपर box. 6 नहीं Box to box. गुमारेस इज नॉट अ प्रॉपर 6 Number 8. हाँ, he is more like ये हमारा एलियट एंडरसन है ना, he is more like that, हाइब्रिड है, 6+8 का मिक्सचर है वो। एलियट एंडरसन इज That's आउट why- क्योंकि वो शायद मैन सिटी चूज कर रहा True, है, true. That I mean that's the rumors उसकी that जगह I'm ही hearing. ब्रूनो गिमारेस हम ले रहे हैं। Yes, yes. सो ब्रूनो गिमारेस प्लस सैंड्रो टोनाली अगर हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया। पर यार Newcastle दोनों अब- न्यूकासल दोनों एक साथ थोड़ी देगा यूनाइटेड। न्यूकासल अपना दिल निकाल के थोड़ी दे देगा भाई। हाँ, वही। ठीक है। तो आई गेस सैंड्रो टोनाली की जगह यू आर सेइंग एंजेलो स्टिलर। आंद्रे जो मैंने आंद्रे बोला ना, सो बेसिकली कैसेमीरो, इफ यू लुक एट हाउ कैसेमीरो प्लेज, ठीक है, द वे ही प्लेज, एंड अगर पूरे वर्ल्ड में जो करंट एक्टिव क्रॉप ऑफ फुटबॉलर्स है, इफ यू लुक एट द वे दे प्ले, तो सबसे लाइक फॉर लाइक टाइप ऑफ अगर रिप्लेसमेंट होगा ना तो आंद्रे। व्हाई? बिकॉज अगेन कैसेमीरो ब्राजीलियन, ही इज ब्राजीलियन, ठीक है, ही प्लेज ए प्रॉपर डीप लाइंग होल्डिंग मिडफील्डर। आंद्रे सिमिलर पोजीशन, ठीक है। दूसरा क्या है कि ही इज अ ब्राजीलियन एज सेड, और दूसरा क्या है वो ही इज ओनली 24 आई थिंक, 24 या 23 आई गेस,
ठीक है, तो he has Premier League experience, he has youth in his in his side, and तीसरा क्या है कि he has that base जिसके ऊपर हम build कर सकते हैं. We already have that similar kind of profile in the team. तो टीम में एडजस्ट करने में भी और बाकी टीममेट्स को भी एडजस्ट करने में उसके अराउंड आसान हो जाएगा. दैट विल बी अ लॉट इजियर. एंड एक चीज और मैं इम्प्रूव करना चाहूंगा. सी यहाँ मैनेजर वाले पॉइंट पे ना मैं थोड़ा डिफर करता हूँ बाकी सबसे. द रीजन बीइंग कि इफ इट्स नॉट ब्रोकन यू डोंट फिक्स इट, राइट? Exactly. इफ इट्स नॉट ब्रोकन. अभी पहला पॉइंट पे आते हैं कि करंट लेवल पे जो इंटेंसिटी है, अभी इंटेंसिटी हैज ड्रॉप्ड. करेक्ट, सब वी ऑल एग्री इंटेंसिटी हैज ड्रॉप्ड. बट उसके पीछे का रीजन क्या है? वी आर नॉट लुकिंग एट इट प्रॉपरली. आप जो हमारा जब कैरिक ने ओवरटेक किया था, ठीक है, ही टुक ओवर एज द इंटरिम मैनेजर, केयरटेकर मैनेजर, व्हाटएवर यू वांट टू से, उस टाइम पे जो हमारे फिक्चर्स थे दे वर यूजुअली वंस अ वीक, ठीक है, एवरी 7 days वी वर प्लेइंग. बट आफ्टर दैट हमारा जो फिक्चर शेड्यूल है दैट हैज बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल. कभी हम 3 दिन में खेलें एक बार, और एक बार हम 14 दिन के बाद भी खेलें, ठीक है. तो दैट लेवल ऑफ जो कंसिस्टेंसी है ना वो नहीं आता है. आप देखो फॉर एग्जांपल, आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. प्री सीजन में जो इंटेंसिटी होती है और जो सीजन के ओपनर में इंटेंसिटी हो, आर द सेम? नो, दे आर नॉट. रीजन बीइंग कि जब बीच में ब्रेक्स आते हैं ना तो इंटेंसिटी विल ड्रॉप. मैंने एक्चुअली अगर स्वयं को याद हो तो आई थिंक एस्टन विला वाले मैच में मी एंड हिम वर टॉकिंग अबाउट इट, एंड मैंने उनको बोला भी कि अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो कि हाउ यूनाइटेड आर प्लेइंग एंड हाउ वी हैव स्टार्टेड, आई थिंक हम धीरे धीरे वापस वो इंटेंसिटी, वो गेम वाला जो मोड होता है ना वो वापस आ रहा था. ठीक है, ओनली थिंग वी नीड इज कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग टाइम. ठीक है, हमारा अगर मैचेस एवरी वीक में एक बार मैच भी होगा ना तो हमारा इंटेंसिटी मेंटेन हो जाएगा. वी हैव द प्लेयर्स फॉर दैट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग कि द प्लेयर्स आर very clear about the role they have to play. Yeah. Third जो सबसे important factor है, again Amorim haters, I understand, but Amorim ने जो सबसे बड़ा काम किया है, the reason, see I am following United since 2002, और अगर United fans are being honest with them, United has never been a team of stars. ठीक है, Beckham को लात मार के निकाला गया था. इफ यू रिमेंबर, यू नो सर एलेक्स ने ही थ्रू अ बूट एट हिम. ठीक है, वैन निस्टेलरॉय, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दैट टाइम अपार्ट फ्रॉम R9, उसको ही वाज नॉट परफॉर्मिंग द वे, ही वाज नॉट जेलिंग विद द टीम इन दैट वे, उसको निकाल दिया. नो टू सेंट्स अबाउट इट. याप स्टैम, ठीक है, रॉय कीन, यू लुक एट प्लेयर्स. आज की डेट में रॉय कीन जैसा प्लेयर होता ना तो ही वुड हैव बीन द मोस्ट इन डिमांड प्लेयर. ठीक है, बट the way Sir Alex handle the team is कि टीम से बड़ा कुछ नहीं होता है, and that is the culture that I am seeing right now at least. ठीक है, इस टीम में यूनिटी है, इस टीम में एक ब्रदरहुड काइंड ऑफ फीलिंग है. दे प्ले फॉर ईच अदर, दे आर विलिंग टू प्ले फॉर ईच अदर. ठीक है, एंड आई एम सीइंग लेसर सेल्फिश शॉट्स. ठीक है, तो आई थिंक वी शुड बिल्ड ऑन दैट. ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट अब मैनेजर का आते हैं. जस्ट क्लोज वेरी क्विकली. आप देखो, is there any manager in the world that can guarantee you, like absolutely guarantee you success? No, there is not. No, there is not. Maybe you can argue कि Guardiola था एक time पे, but his football is found out now. ठीक है, his football is outdated now, to be very honest. So why go for? हमने already we had done this. ठीक है, we had Mourinho, we had Van Gaal. क्या हुआ? Did not work out. Did not work out. Why not give a chance to someone who knows United inside out? Exactly. ठीक है, and who is giving you results? वो कर भी रहा है. ऐसा नहीं कि it's a fluke. He is managing United very well. He has shown promise. He has shown results. He has shown vision. अगर आप देखो कि अभी से next season का planning हो रहा है, तो that gives you a very clear idea कि Carrick is very clear in how he wants the team to be set up. Right. And last closing remark मैं दे दूंगा कि अभी अगर हम मैनेजर चेंज करना होगा ना तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड क्लोज हिम राइट नाउ, बिकॉज़ द प्रिपरेशन फॉर द समर बिगिंस नाउ. ठीक है, इवन विद द ट्रांसफर विंडो. यस, ठीक है, समर्स में अभी जून में जाके हम टारगेट्स आइडेंटिफाई करेंगे ना तो नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो द टाइम टू एक्ट इज नाउ, एंड आई थिंक कैरिक शुड कंटिन्यू. मैं तो पहले भी यही बोलने वाला था कि अगर किसी को कोई नहीं रोक सकता, बिलीव इट. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वांट अस टू एटलीस्ट
स्टार्ट अ बिट जस्ट अभी वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन में क्या हुआ, 6 मैच में 1 मैच जीते हम, 1 मैच। क्या ओमान तोमान फलाना ठिकाना से हार रहे हैं भाई, क्या है, कितना पॉपुलेशन है ओमान का, ओमान जैसे 100 कंट्री खड़ा कर देंगे हम अकेले, है ना। तो व्हाट आई मीन इज कि, और एग्जांपल ले लो, चलो अदर स्पोर्ट में आते हैं, 2 सेकंड की बात है, साइना नेहवाल को कौन जानता था पहले, उसने परफॉर्म किया भाई, दुनिया भर के एंडोर्समेंट उस, हाँ दुनिया भर के एंडोर्समेंट भागे उसके पीछे, हाँ लियांडर पेस अभी तक खेल रहे हैं। तो फिर हाँ, सानिया मिर्जा कौन जानता था उसको पहले, जब लेकिन जब वो आई उसने परफॉर्म किया भाई डबल्स में, मतलब मिक्स डबल्स में शी वाज ग्रैंड स्लैम विनर्स, तो फिर तब जाके उसको भाई एंडोर्समेंट मिले। बेसिकली व्हाट आई से इज कि ठीक है, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, करप्शन है, डिस्पाइट ऑल दिस द बेयर मिनिमम भी हम नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट माई प्रॉब्लम इज। ठीक है, हम बेयर मिनिमम भी नहीं कर रहे हैं। यू स्टार्ट डूइंग दैट, भाई ऑडियंस अपने आप जाएगी, इंटरेस्ट अपने आप आएगा। इट्स नॉट लाइक कि आज के डेट में ना सब लोग अवेयर हैं अबाउट दोज थिंग्स, बट दीज थिंग्स की वीडियो बना के भाई मेरे को भी देखने आओ, ये दिस लिटरली लोअर्स द स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल। एग्जैक्टली एक मिनर्वा एकेडमी के, जैसे मिनर्वा एकेडमी ने दे डिड द राइट थिंग कि पहले उन्होंने परफॉर्म किया, दे क्वालिफाइड फॉर Exactly. वो बोले उनका हक है Yes. कि भाई देखो हम 8-0 हरा रहे हैं, 10-12 हरा रहे हैं, True, क्या true, हरा रहे हैं भाई। true. और यंग लेवल पे नाउ वो जैसे वो एक अच्छा है कि भाई प्रोजेक्ट 2034 वो लोग भी इतना लंबा सोचे, वो लोग भी ढेंगे नहीं मारे कि भाई ये साल दिखा देंगे, 2 साल में दिखा देंगे, True, वो लोग true. भी खुद के लिए थोड़ा टाइम ले। Yes. Yeah. Yeah, so I think I fairly agree with the points that Prem bhai said कि पहले performance first, मतलब सी हम लोग बातें करने के लिए बात कर सकते हैं। मैं आज I'm 25 right now, right? मैं जब से 10-15 साल का था तब से मैं एक लाइन सुनते आ रहा हूँ कि इंडिया इज द स्लीपिंग जाइंट ऑफ फुटबॉल। 15 साल बीत गए, अभी तक जाइंट वर्ड हमको कहीं भी, हाँ सो ही रहे, वही हो रहा है, बहुत साल हो गए। हाँ बहुत साल हो गए। तो मेरा भी पॉइंट यही है कि वी नीड टू फर्स्ट बेटर द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल फर्स्ट इन इंडिया। मतलब देखो, मतलब इतने सारे एशियन कंट्रीज है जो हमसे भी गरीब है, शायद उनके पास अच्छे से जूते भी नहीं है पहनने के लिए, जैसा बोला बांग्लादेश हो गई, नेपाल हो गए, श्रीलंका हो गए, बट देन ऑल्सो स्टिल मतलब 150 करोड़ की आबादी है, तो आई एम श्योर कि 150 करोड़ में से हमको 15-20 प्लेयर्स तो अच्छे मिल सकते हैं, राइट। आई स्टिल रिमेंबर 2017 में आई वॉज 17, मैंने 2017 का अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उसमें भी इंडिया कुडंट परफॉर्म। मतलब जहाँ तक मेरे को याद है मोदी जी ने ओपनिंग किया था, फुटबॉल स्टेडियम्स बने थे, यू नो अभी फनी लगेगा बोलने के लिए, बट मैं जब 16-17 साल का था, आई ड्रीम्ड ऑफ प्लेइंग फॉर द इंडियन टीम। मतलब ऐसा था कि मैं बहुत पैशनेट था। अरे Nothing funny भाई। अच्छी बात है। या मतलब लोग आजकल के बच्चे सोचते हैं कि मेरे को विराट कोहली बनना है। आई ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग सुनील छेत्री, राइट। मतलब और आई ट्रूली बिलीव कि मेरे जितने ऐसे कितने हजारों लाखों बच्चे हैं इंडिया में जो करंटली इंडियन फुटबॉल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बट दे ऑफ कोर्स दे डू नॉट फर्स्टली हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जैसा बोला कि स्वयं ने भी बोला कि ठीक है, दोनों साइड से प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, बट आई स्टिल बिलीव कि करप्शन बहुत है। मतलब अगर हमको ग्रास रूट ओवर करप्शन है, करेक्ट। सो अगर हम लोग को ग्रास रूट लेवल पे जाके सपोर्ट करना है तो वी शुड डू दैट। मतलब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए हमारे, लाइक इट्स वेरी शेमफुल टू से दैट कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ढंग से प्रोनाउंस करना भी नहीं आता। जो इंडियन क्लासिक टीम्स है, जैसे मोहन बगान है, जैसे बहुत सारी अलग अलग टीम्स है जो कि हिस्टोरिकल क्लब्स है इंडिया का, अगर इंडियन फुटबॉल कंपेयर करें तो आई डोंट थिंक सो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का बॉल चाहिए। मतलब उसको एटलीस्ट दे शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल। अगर आप इतने बड़े गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो तो सी आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट, और मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करने आया हूँ गवर्नमेंट को, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट गोइंग ऑन। आई जस्ट वॉन्ट कि गवर्नमेंट थोड़ा फंडिंग करे और थोड़ा नॉलेज, मतलब थोड़ा ध्यान दे इस पर। मतलब ऐसा नहीं है कि फुटबॉल एज अ प्रोजेक्ट को ही पूरा साइडलाइन कर दे। अगर मिनेर्वा अकेडमी बना है, डेवलप किया है, तो उसको दे कैन, आई एम श्योर दे कैन अलोकेट सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट टू दैट पर्टिकुलर क्लब। अगर मिनेर्वा अकेडमी को फंड रेजिंग जैसी हालत हो रही है, सो
यार गवर्नमेंट को क्या लगता है, एक करोड़ देने में क्या लगता है? मतलब हजारों करोड़ का करप्शन हो रहा है इंडिया में. सो 1 करोड़ तो आई एम श्योर कोई पॉलिटिकल अपने जेब में से भी, पॉलिटिशियन अपने जेब में से भी दे देगा, राइट? आराम से. मैं उस पर बाद में आता हूँ. आई हैव अ पॉइंट सौरभ भाई. देखो मेरा टेक तो डायरेक्टली बोलूँ मॉनेटरी टर्म्स पे, आज से पहले मतलब लास्ट 5-6 साल से पहले अगर आप बोलो ना, सूरत में भी है ना, इतने फैंस नहीं हुआ करते थे तो भी वो बाहर नहीं आते थे. फुटबॉल ओरिजिनली देखा जाता था तो ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न या साउथर्न साइड में. वेस्ट में क्रिकेट का चलन आ चुका था, सब क्रिकेट ही देख रहे थे. किसी को धोनी, किसी को रोहित शर्मा, कोहली ऐसे ही पसंद थे. अब जब ये चालू हुआ है, हाइप क्रिएट हो रहा है, तो यंगस्टर्स को भी हो रहा है कि करना है. वरना उस टाइम पे अगर पेरेंट्स को बोलते भी कि हमें फुटबॉल बनना है, फुटबॉलर बनना है, ऐसा कुछ, तो वो सपोर्ट नहीं करते क्योंकि एज अ टीम स्पोर्ट वो इतना नहीं आगे बढ़ा है. जितने भी आप लोगों ने एग्जांपल दिए वो सारे के सारे इंडिविजुअल स्पोर्ट है और वो जाके वो वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं. बट अगर सपोज करो यहाँ पे मैं हूँ, हम पूरी एक टीम है, प्रेम भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम अच्छा नहीं खेल रहे, तो उनका करियर हमारे साथ खराब हो रहा है. ये इंडिविजुअल स्पोर्ट होता तो अच्छा कर सकते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब तक चीजें फाइनेंशियली सही नहीं होगी, कोई भी पेरेंट या कोई भी उतना इन्वॉल्व नहीं होने वाला है. और यूथ अब जाके क्रिकेट से हट के दूसरी चीजें देख रहे हैं. क्रिकेट ने हर स्पोर्ट को ओवरशैडो कर दिया है यहाँ पे. अब F1 के लिए भी बहुत क्रेजी हो गए लोग, फुटबॉल के लिए हो गए, अब नीरज चोपड़ा को भी देखना चाहते हैं. तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मीडिया इंक्रीज हो रहा है, ये चीजें सही हो रही है. वरना उससे पहले मेरे हिसाब से कोई चाहता भी नहीं था. बातें सब करेंगे कि भाई मुझे बनना था, बट इनिशिएटिव अगर उनको ऑप्शन दो तो वो भी नहीं लेते. कि पैसे जाने ही खुद के ही डूबने. आप अगर खुद भी लगा दोगे कि चलो मैंने क्लब बना दिया, वो नहीं होने वाला कुछ पॉसिबल उसके लिए. ये मेरा टेक है. See, I'll come back to the original point. मेसी को देखने के लिए अपन ने आई थिंक 100 करोड़ आसपास कुछ लगाए, 150 करोड़. अभी now you making sense, but it's a collective want of the people, right? So it's a अब एक साइंस में मैंने एक चीज पढ़ी थी, डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, उसका क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट एफर्ट्स दोनों साइड से इक्वल चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है प्रेम भाई. क्योंकि क्या हो जाएगा उसमें कि आप फॉर एग्जाम्पल मिनर्वा एकेडमी जैसे कोई है जिसको 1 करोड़ रुपया चाहिए. आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे और स्पोर्ट्स है, ऐसे बहुत सारे और एकेडमीज है. ठीक है, द मोमेंट एन ऑफिशियल गवर्नमेंट साइड से ऐसा कुछ होगा, ऑल दोज एकेडमीज वुड बी चार्ज्ड अप, राइट? और फिर क्या होगा, एक जब तक इसमें एक प्राइवेट बॉडी ही नहीं अपॉइंट होगी ना, आई डोंट थिंक सो इसका भला होगा. जैसे आपने किसी ने बोला राइट कि लता मंगेशकर का पूरा एक कॉन्सर्ट करना पड़ा था, राइट? उसमें तो गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व हुई, तब भी नहीं हुई थी. क्या होता है ना, गवर्नमेंट देखो एक तो थोड़ा लेजीनेस हो सकता है, पर उसके अलावा भी गवर्नमेंट के भी बहुत तरीके से हाथ बंधे हुए हैं यार, राइट? आज अपने को क्या लगता है, अपने घर के बाहर खड्डा खुद गया है तो हर संघवी को फोन कर दे. दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस. मैं भी अभी रिसेंटली सीख रहा हूँ पॉडकास्टिंग के द्वारा कि देयर इज अ लेयर्स. आपको कॉर्पोरेटर को रीच आउट करना, आपको सीधा संसद को इन सबको रिपोर्ट करके कोई मतलब ही नहीं हो, कुछ कर ही नहीं सकते उसमें. तो वैसे आई थिंक इट विल स्लोली, आई थिंक स्वयं वाज द मोस्ट इमोशनल अबाउट इट, बट हो जाएगा. तू 19 का, हम 30, हम फिर भी देख रहे हैं, हो जाएगा. बाय द टाइम वी आर 60, बाय द टाइम यू आर 40, हो जाएगा. वन थिंग कि हम बोल रहे हैं परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जो आपने बेयर मिनिमम बोला, द वुमेन्स टीम हैज डन द बेयर मिनिमम फॉर अस. कि उनने एटलीस्ट हमको एक ऐसे पोजीशन तक ले आया था कि हम लोग वी कुड हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप. दे डिड दैट. भले हम जापान से 10 गोल खा के हार गए थे, दैट वाज अ वेरी डिस्गस्टिंग डिफीट, बट दैट थिंग इज कि उनने भले जापान, देखो जापान में फुटबॉल में बहुत अच्छी वो हो गई है कंट्री, इन वुमेन्स फुटबॉल तो वो और अच्छी टीम है. पर जो वुमेन्स फुटबॉल हैज डन, अब हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं यार. हम मेंस फुटबॉल मत देखो, चलो वो परफॉर्म नहीं कर रही है मत देखो, वुमेन्स फुटबॉल देखो. दे हैव डन वंडरफुल थिंग्स एंड आई थिंक मनीषा, बट दे डिड नॉट क्वालिफाई द नेक्स्ट राउंड, राइट? they they did not clear the Now that is what he's talking about. no one thing is कि जो हमने बोला ना, जो एशिया में हम टीमों को हरा रहे वो हम हरा रहे थे. नहीं, बट सी हमेशा एक पड़ाव पे आके रुक जा रहे हैं. नहीं दैट थिंग इज वुमेन्स फुटबॉल में ऐसा नहीं था ना. देखो मेंस फुटबॉल में था, एक सेकंड, मेंस फुटबॉल में था कि अभी तक है कि हम लोग नहीं हरा पा रहे किसी को. वुमेन्स फुटबॉल में हम पहले नहीं हरा पाते थे, अब हमने उनको हराया. ठीक है, देन देयर वाज अ चांस फॉर क्वालिफिकेशन फॉर द वर्ल्ड कप. अगर हम एक स्टेप और आ गए थे तो वी वुड हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप. तो एटलीस्ट दे डिड समथिंग, दे रीच द एशियन कप के उस लेवल पे जाके वो लोग
परफॉर्म भी किए थे, पता है आप देखो, दे ऑलमोस्ट क्वालिफाइड। अगर वो एक गेम हम लोग बहुत गंदा हारे, वो नहीं हारते तो शायद वी कुड हैव क्वालिफाइड। तो दे एटलीस्ट डिड अ स्टेप अबव, उनने एक स्टेप रखा है तो हम उनको एक स्टेप और सपोर्ट कर सकते हैं। लेट से हम 1,000 रुपये अगर मिनर्वा अकेडमी को दे सकते हैं, आज हम वी आर सपोर्टिंग देम क्योंकि वो MIC कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो दे ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द एशियन कप। तो वो एशियन कप तक पहुंचना फॉर वुमेन्स फुटबॉल, जहां हमारी एक नैरो माइंडेड कंट्री है फॉर वुमेन्स, I personally respect all the women's. They are queens for us and उनको we should support in sports, क्योंकि sports में we have a thing कि 150 करोड़ की आबादी है, पर जितनी भी आप कंट्रीज देख लो ना, वुमेन्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। if we Indians start supporting women's, they can actually do the wonderful thing, and फुटबॉल में तो भाई they will do it। भैया क्रिकेट में आप जाके सपोर्ट कर रहे हैं, तू हाँ, रहने दे, क्रिकेट में वो support इतना करेगा। वक्त लग गया, वो सचिन से ज्यादा ऑलमोस्ट मैचेस खेल ली मिताली राज, अब जाके भी उसको ड्यू शायद से नहीं मिला, तो ठीक है, धीरे धीरे होगा। आप कुछ बोल रहे थे? Yes। मैं बस यही पॉइंट कर रहा था कि वुमेन्स फुटबॉल जो है दैट इज ऑन एन इंटरनेशनल लेवल आल्सो, ठीक है, जो फॉलोइंग एंड जो लेवल है मेंस फुटबॉल का, उसे कंपैरिजन में वुमेन्स फुटबॉल इज स्टिल वेरी अप एंड कमिंग, ठीक है। बट दे work like- थोड़े टाइम में बहुत अच्छा अचीव कर लिया। मैं समझ रहा हूँ उस बात को, एंड ग्रोइंग सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट कंपेरेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ स्पोर्ट कंपेयर करना उनके लिए अनफेयर हो जाएगा। एग्जैक्टली। फुटबॉल जो है, फुटबॉल इन इटसेल्फ जो है इज वेरी वेरी लो डाउन द ऑर्डर, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अभी उसमें भी आप वुमेन्स वाला सेक्शन ले आओ, आई एम नॉट बीइंग अ मिसोजिनिस्ट, बट वुमेन्स फुटबॉल का जो रेवेन्यू ड्राइविंग है दैट इज वे लोअर देन मेंस फुटबॉल। अब उसमें आप इंडियन टीम को ले और फिर कंपेयर कर वुमेन्स, आई एग्री वी शुड सपोर्ट, बट उस लेवल पे आएंगे तो अपने आप हो जाएगा। जस्ट एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ एक चीज, रेसलिंग जो है बहुत ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, लेकिन उसका फॉलोइंग एंड सपोर्ट उतना ज्यादा था नहीं। बाय व्हाट टाइम ये स्टार्ट हुआ, ये दंगल मूवी बन गया, फलाना बन गया, ये सब कब से बना? मेरी कॉम तो चलो बॉक्सिंग का, ठीक है, जब साक्षी मलिक मेडल लेके आई उसके बाद उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जमा, राइट। एक कर्नम मलेश्वरी करके जो वेट लिफ्टर, ठीक है, हाउ डू वी नो दिस नेम्स? उसमें इतना कोई फंडिंग वो सब नहीं था, बट दे परफॉर्म, दे गॉट द रिकॉग्निशन। मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं मिला, व्हेन यू परफॉर्म विदाउट दैट सपोर्ट एंड गेट टू अ सर्टेन लेवल ना, तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि ठीक है कि मुझे थोड़ा और मिलता तो मैं और कर लेता, क्योंकि आपको मिलेगा, यू विल गेट योर ड्यू व्हेन यू आर अप टू दैट लेवल, ठीक है। और जो जिद्दी लोग होते हैं ना, वो कर लेते हैं, ठीक है, आपने सपोर्ट नहीं किया, माने घर में बंद कर दिया, ये सब ना एक्सक्यूजेस हैं दोस्त। दीस आर ऑल, इफ यू वांट टू डू इट ना, यू विल फाइंड अ वे, ठीक है। कोहली आज कोहली है तो इसलिए क्योंकि उसका बाप मर गया था ना, फिर भी वो खेला था मैच, Yes। ठीक है। सो एक्सक्यूजेस नहीं होते दोस्त, स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रू। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या वो तो खैर वो तो अनगिनत एग्जांपल्स है उसके लिए। मेसी, Yeah। उसको भी आई गेस वो हुआ था ना कि वो शॉर्ट हाइटेड रह गया था, और तो उसकी हाइट बिल्कुल ऊपर नहीं हो रही थी। अरे मेसी रोनाल्डो तो बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, देयर आर लाइक हर स्पोर्ट में एवरीवेयर। लोकल, हमारा लोकल भाई युवराज सिंह, हाँ बंदे को कैंसर सर, हाँ उल्टियां कर रहा है वो, उल्टियां कर रहा है। सेंचुरियां मार रहा है। एनीवेज आई थिंक ये सबसे ज्यादा पैशनेट, हाँ यार प्लीज ऑफ कोर्स। आपने जो बोला ना कर्नल मलेश्वरी, सो वो जो भी था ना, ऑल वेर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, ठीक है। इंडिविजुअल में एक बंदे को टू राइज इज कंपेरेटिवली इजी, जबकि उन्होंने बोला कि एक बंदा अच्छा खेल रहा है पर बाकी पूरी टीम उसके अगर गलत लेवल की है तो पूरा सब डाउन आ जाता है। इसलिए वेन एवर वी आर सपोर्टिंग अ टीम स्पोर्ट, तब गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रास रूट लेवल्स तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रादर देन जस्ट वन प्लेयर। दैट इज माई ओनली पॉइंट, मतलब दोनों साइड से होगा। चलो बस Exactly। मतलब ये डिबेट थोड़ा लंबा खिंच रहा है, लेकिन मैं आपको ना बस एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट, अग्रीड, बट इवन इन अ टीम स्पोर्ट देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू शाइन। इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि एक इंडियन फुटबॉलर लेट्स से प्लेड एट एन एलीट लेवल इन एनी, उनको ऑप्शन तो है ना भाई, जाके यूरोप में खेल सकते हैं। नहीं है, दैट इज द थिंग। So just Why है option? I'll just clarify, सुनील छेत्री को QPR से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बट इंग्लिश लीग FA का ऐसा है कि दे ओनली गेट्स द प्लेयर्स जिनका रैंकिंग फीफा में 1 to 70 में होता है। दैट्स व्हाई ही कुड नॉट प्ले। गुरप्रीत सिंह संधू को मिला था, ही कुड नॉट प्ले।
जस्ट बिकॉज ऑफ द नेशनल तो रैंकिंग, खेला भी था। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेशनल रैंकिंग वो लोग नहीं जा पा रहे. And some सो Portuguese club, right? तो ये कलेक्टिव एफर्ट ही होगा तभी हम आगे बढ़ एंड पाएंगे. शायद बिग स्पोर्टिंग में था, हाँ, स्पोर्टिंग में था, स्पोर्टिंग सीपी में था. स्पोर्टिंग सीपी में था. स्पोर्टिंग सीपी में खेलना भाई अपने इंडियन प्लेयर के लिए कोई मजाक नहीं है. भी तो खेला है ना वो यूरोप में. सुनो क्या मेरी नाम बात, है उसका? गुरप्रीत सिंह संधू. ठीक है, उसको ठीक लोग है. जानते हैं, जानते गोलकीपर था हैं ना? जी, Yes. गोलकीपर अभी है, उसके अलावा है कौन? गोलकीपर. उसके अलावा कौन? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी आप बात सुनील सुनो. छेत्री, लोग We जानते हैं have उसको. Why? Because he has managed to stand up to that level. we have two players जो यूरोपियन लेवल पे खेल चुके हैं, गुरप्रीत सिंह संधू एंड सुनील भाईचुंग छेत्री. भुटिया को जानते हो? भाईचुंग मतलब मैं अभी, हाँ ऑब्वियसली यार. मेरा कहने का मतलब ये है कि टीम स्पोर्ट, अगेन सो सॉरी बट इट इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज. आप टीम स्पोर्ट में भी शाइन कर सकते हो. I think, yeah, एंड see, इफ यू for- गेट टू दैट लेवल ना, ठीक है, तो अगर आप सिंगल बंदा है जो बहुत अलग लेवल पे खेल रहा है ना, तो भी यू विल ब्रिंग द आईज टू द गेम. और आईज आएंगे तो एंडोर्समेंट आएगा, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा भाई. यार ठीक है? खेला ना लोग सुनील gradual छेत्री, gradual खेला ना होगा. सुनील But छेत्री. एक player मेरी ना, बात सुनना, वही उनने बोला. 150 करोड़ की आबादी है तो एटलीस्ट आई एम श्योर व्हाट एंड भाई 150 करोड़ की आबादी है तो आप लोग एक चीज बहुत ही, अभी मैं खैर ये पूरा टॉपिक स्पोर्ट्स से अलग चला जाएगा, बट आप अगर इफ यू कम डाउन टू इंडिविजुअल्स ब्रो, हम एवरीबडी हैज, सॉरी टू साउंड वेरी इनसेंसिटिव और व्हाटएवर, हम सबकी पर्सनल लाइफ है भाई, हमारे पास और बहुत कुछ करने को है, राइट? सो ऑल ऑफ अस कैन नॉट सिट डाउन एंड जस्ट थिंक अबाउट a sport that is not coming up. Correct. Some things just have to pull it by itself, यार. Nobody came, like मैं बोल रहा हूँ, भले वो नीरज चोपड़ा हो जो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलता हो, भले वो सचिन तेंदुलकर हो जो एक टीम स्पोर्ट खेलता हो, भले वो पीवी सिंधु हो जो, इफ यू सी बैडमिंटन इज मिक्स बैग, कहीं कहीं अपन एज इंडिया जाके रिप्रेजेंट करते हैं. तो अपन ने क्यूमुलेटिवली भी साथ में अच्छा किया है. कहीं कहीं जाके तुम वापस, आज आर माधवन का बेटा है वो इतना कर रहा है तो उसको भी ड्यू नहीं मिलता है. इट विल टेक टाइम, राइट? आप माइकल फेल्प्स को आज दुनिया का सबसे ज्यादा डेकोरेट एथलीट हो गया, वो रोनाल्डो मेसी से ऊपर है वो इन टर्म्स ऑफ डेकोरेशन का, अगर आ जाए जितना उसने जीता है, मेडल्स एंड स्टफ, राइट? तो आई थिंक जैसे मैंने कहा, इट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. जैसे आप थोड़ा इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाओगे, आई कैच आएगा, उसकी वजह से मैचेस देखने चालोगे, उसकी वजह से रेवेन्यूज आएगा. देखो इवेंचुअली रेवेन्यूज मैटर अ लॉट मैन. इफ इट कैन नॉट, वो पैसा घूमेगा ही नहीं ना, तो कैसे कोई, एक मिनट, आप आपके पापा या आपके मॉम आपको ऐसी कोई चीज करने में इंडोर्स करेंगे क्या जिसमें कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है? वो आपके आपके खेलने के अगेंस्ट नहीं है, आपके फ्यूचर के अगेंस्ट है. एग्जैक्टली माय पॉइंट. वो अलाउ ही नहीं करेंगे तो. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सौरभ भाई बहुत सिंपल है ना यार, सबको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए. आप 150 करोड़ बोल रहे हो, मतलब आप लगभग हर जॉब के लिए या फिर हर आदमी के लिए 50 से 100 से हजारों लोग रेडी है. अगर पूजन पॉडकास्ट नहीं करेगा कोई और कर लेगा भाई. न्यूजीलैंड में नहीं बैठे हैं जहां टोटल 40 लाख है. तो वो चीज है. एबी डिविलियर्स हर स्पोर्ट खेल पाया भाई, क्यों? क्योंकि वो आबादी नहीं है तो वो निकल गया. आई थिंक डिबेट तो बहुत अच्छा है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे वैसा चीज है यार, दोनों को एक दूसरे को फ्रॉम बोथ साइड्स तो हो जाएगा. आई थिंक हो जाएगा. बट ओके, क्विकली टॉप 4 विल डू अनदर पॉडकास्ट. फ्रैंकली अभी तक तो मुझे बहुत मजा आ रहा है. विल डू अनदर पॉडकास्ट पूरा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है? बट फॉर नाउ टॉप 4. पोर्तुगल, हाँ फ्रांस, हाँ ब्राजील, हाँ. अर्जेंटीना. Okay, so for me, the top 4 for the 26 World Cup will be in England. My personal favorite, Brazil. पर्सनल फेवरेट कौन सी तेरी? Brazil. ओके ओके, हाँ. Brazil is my personal favorite. And third is, for the last time, for the love of Ronaldo, I want to see Portugal at least qualify till semi-final, if not winning the final, because मेरी दिली इच्छा है कि मैं उनको, रोनाल्डो को स्पेशली एक टाइम वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए देखना चाहता हूँ. So third is Portugal, fourth is bit tricky है, but I think स्पेन या फ्रांस में से कोई क्वालिफाई कर. वापस इंग्लैंड, ब्राजील, पोर्चुगल, स्पेन नहीं, या स्पेन. सौरभ भाई आपके क्या थे? पोर्तुगल, हाँ, ब्राजील, ओके, फ्रांस, अर्जेंटीना शायद. अर्जेंटीना. फ्रांस, ओके. हाँ, प्रेम भाई. For me, absolute top has to be Portugal. ओके. Right now, among the world's best players play for Portugal. ठीक है. Next up would be obvious, very obvious, France and Spain. Spain has to be there. Spain has to be there. One of the best teams. And Best team. बस fourth spot में थोड़ा mix है actually. दो के बीच I'm very divided.
दैट इज इंग्लैंड एंड ब्राजील. दोनों के मैनेजर की वजह से हम some conflict because England का manager is Thomas Tuchel and Ancelotti obviously for Brazil. So fourth spot मेरा थोड़ा mix है. It's not very clear. जिगर भाई? आई वुड से फ्रांस ऑब्वियस है, उसमें कुछ डिबेट नहीं है. पोर्चुगल ऑब्वियसली, ब्रूनो है उधर, रोनाल्डो है, अभी और क्या चाहिए, वो तो सब हर मैन यूनाइटेड फैन को चाहिए जीते. इंग्लैंड, पोर्चुगल, फ्रांस, 3. एंड फोर्थ आई वुड लाइक टू गो स्लाइटली डिफरेंट. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई अफ्रीकन नेशन? यस, आई वुड लाइक टू गो फॉर सेनेगल. मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल फुटबॉल हो रहा है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बेस ऐसा हो रहा है. वो लोग बंदे एकदम फ्री फ्लो खेलते हैं, फ्री फ्लो खेलते हैं, सब ताकतवर है और तोड़ देंगे ऐसा लग रहा है. तो आई थिंक अफ्रीकन क्लब, इधर मोरक्को लास्ट टाइम भी सेमीफाइनल आया था, तो इधर मोरक्को और सेनेगल ऐसा कुछ लग रहा है. कोई यूरोप का थोड़ा तो घमंड टूटेगा इस बार, ऐसा लग रहा है. यूरोप, साउथ अमेरिका का एक आध 2 टीम तो आएगी अफ्रीका की. The winner has to be Portugal, obviously. भाई लास्ट ईयर जो मतलब लास्ट वर्ल्ड कप में जो अर्जेंटीना की वेव चली थी कि मेसी को जीतना है, मेसी को जीतना है, मेसी को जीतना है, मैनिफेस्टेशन ही हो गया. सबकी मैनिफेस्टेशन हो गई थी. लिटरली एवरीवन इन द वर्ल्ड वांटेड मेसी टू विन द वर्ल्ड कप. मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लिटरली एवरीवन, क्योंकि आखिरी तक भी एम्बापे ही चाह रहा था, वो गोल एक लग जाता. ओके सी, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इवन एज अ रोनाल्डो फैन, भाई मैं चाहता था कि मेसी या रोनाल्डो में से एक जन लिफ्ट करे वर्ल्ड कप. That has to be the legacy. I wanted that final में I was even, मतलब मैं फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, बट एक अंदर फीलिंग थी कि भाई एक बार जीत जाए बंदा, और वो जीता. तो लोगों की मैनिफेस्टेशन हो गई थी. सो फर्स्ट पोर्चुगल, एंड द सेकेंड वन आई वुड गो फॉर इज आई गेस स्पेन. सेकेंड जो फाइनल में स्पेन आने वाली है. थर्ड मोरक्को आएगी, एंड फोर्थ फ्रांस आएगी. एंड द मेन थिंग, आई एम नॉट गोइंग विद इंग्लैंड एंड ब्राज़ील. ब्राज़ील का वर्ल्ड कप में बहुत ख़राब हो गया, बहुत ख़राब, नहीं चांस है ब्राज़ील का इस बार भी. एंड इंग्लैंड का, इवन दो उसका इस साल जो सिलेक्शन है अभी तक का, भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. लुक शॉ हटा दिया, फिर बहुत सारे अच्छे ऐसे शायद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी हटा दिया. तो मेरे हिसाब से एक उन्होंने टीम सिलेक्शन बहुत अच्छा कर दिया है, बट स्टिल आई थिंक उनके पास वो चीज़ मिसिंग है कि वो जीत नहीं पाएंगे. भाई एक क्रेजी फैक्ट बताऊं. थॉमस टुचेल, इंग्लैंड मैनेजर, इज डेटिंग यू नो हु? ट्रेंट की एक्स गर्लफ्रेंड. रिटायरमेंट ले लो. रिटायरमेंट ले लो. नेशनैलिटी चेंज कर सकता है वो, शायद होगा ही, ऑप्शन तो होगा ही उसके पास पक्का. ओके, आई गेस अगर इफ यू आस्क मी, मैं आप सबको 1100 रुपए दूंगा अगर इंग्लैंड फाइनल तक भी आएगा तो. क्योंकि इंग्लैंड हमेशा, भाई मैं तो जब से देखना चालू किया है ना, ऑन पेपर उनसे अच्छी टीम ही नहीं होती है और पता नहीं क्या करके चले जाते हो. ठीक है, तो आई थिंक इंग्लैंड तो नहीं आ रहा टॉप 4 भी, मुझे ऐसा लग रहा है. अभी आई थिंक अभी आ जाएगा, क्योंकि यूजुअली मैं ऐसा जब भी बोलता हूं तब आ जाता है. मेरे प्रेडिक्शंस बहुत बेकार जाते हैं. पोर्चुगल का थोड़ा बोल दो. नहीं, मैं पोर्चुगल के बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ जीते. तो मैंने तो आपको बोला, जैसे आई थिंक कैमरा चालू हुआ उससे पहले, कि पोर्चुगल एंड इंग्लैंड की वजह से तो मैंने देखना चालू किया था, राइट, 2006 का वर्ल्ड कप. तो मुझे, एंड आई एम अ ह्यूज sucker for ऐसा entertaining football जो अफ्रीकन्स खेलते हैं. Like any African team you pick on the day, वो लोग कुछ brilliance करके, magic करके आ जाएंगे, and I think it will be crazy. See, to be very honest, मैं थोड़ा ऐसा geopolitically भी inclined हूँ, तो मुझे पोर्चुगल चाहिए टॉप 4 में. एक अफ्रीकन कंट्री, you pick anyone, should be there. I hope जापान इस बार थोड़ा और अच्छा कर जाए, because यार लास्ट टाइम उन लोग ने, I think it was one of Japan's game that just tilted the entire, वो पूरा ऊपर नीचे कर दिया था. They were playing really well, and I think फ्रांस की 5 टीम्स है यार. इतने तो ऑप्शन है उनके पास. फ्रांस अगर टॉप 4 नहीं आता है तो यार उनको बोलो बंद कर दो आप लोग, फुटबॉल खेलना बंद कर दो. फ्रांस तो बनता ही है. मेरे को नहीं चाहिए कि फ्रांस आए, पर उनकी बहुत क्रेजी है. अरे 5 ऑप्शन है यार. मैं कुछ देख रहा था कुछ इंटरनेट पे. In every team I need, like somebody like me, like I love football, but I do not follow like you guys do it. हर टीम में 2 सुपरस्टार्स है यार. 5 ऑप्शंस थे उनके पास टीम के, 11 के, और हर टीम में दो सुपरस्टार तो एटलीस्ट थे. तो आई थिंक 1 एशियन कंट्री, 1 अफ्रीकन, पोर्चुगल एंड फ्रांस इज व्हाट आई एम थिंकिंग. इंग्लैंड आता है तो मैं याद से आप सबको 1100 मिल जाएंगे. Missing out Spain.
नहीं ब्रो, मेरे को स्पेन पसंद ही नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं। पोर्चुगल को कितना भी सपोर्ट मैं दिल से स्पोर्ट्स फील करने वाला हूँ। जैसे मैं चेन्नई सपोर्ट करता हूँ, मुंबई मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वैसा मेरा तो भाई हिसाब है, मुंबई मेरे लिए, मुंबई इंडियंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसा आईपीएल में हाल है। तो मैं स्पेन को गिनता ही नहीं, क्योंकि पोर्चुगल स्पेन उनको कोई भी आता है मैं उनको हैट्रिक दिखा देता हूँ, फिर वो लोग मुझे भी हैट्रिक दिखा देते हैं, फिर हमारा मैटर वहीं क्लोज हो जाता है। बट ये मुझे लग रहा ही होगा। बट आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइज वी शुड ऑल्सो डू अ पॉडकास्ट ऑन फीफा, थोड़ा और पास में आ जाएंगे। और गाली देनी नहीं चाहिए, पर बहनचोद क्या प्राइसिंग है एक मैच देखने जाने की। कतर में जब हुआ था उसने में आप 2 या 3 मैचेस का ट्रैवल पैकेज लेके $2500 में देख के आ पा रहे थे, एक मैच $2500। और इसमें कोई हाइप्ड अप टीम्स आ गई ऊपर, इमेजिन करो अर्जेंटीना पोर्चुगल टॉप 4 में आ गई, तो कैसे यार ये गवर्नमेंट को कहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए, यहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए कि भाई आप कुछ तो देखो, प्राइसिंग कुछ तो लिमिट करो। इट इज क्रेजी। बट ओके, एनीवेज आई थिंक एवरीबडी इज clinging on to Portugal obviously for obvious reasons. England, Brazil, Spain, I think ये top 4-5 टीमें आ रही है। I hope एक अफ्रीकन कंट्री तो आ जाए, but it should be a really interesting one. But okay, anyways, so now we move to the little fun part where Swayam is going to take the next round and he has a quiz planned for us. मुझे जीरो आइडिया है कि क्या पूछने वाला है, एंड आई थिंक आई एम गोना सक। अगर अपन 5 लोग खेलने वाले तो मैं लास्ट आने वाला, मुझे पता है। नहीं, मैं कंपटीशन ऐसा है क्या? ऐसा है। पहली बार बॉटम के लिए चल रहे हैं। डन, ओके। 1 by 1 पूछो तो ज्यादा बेटर रहेगा यार। नहीं हाथ ऊपर करते हैं, हाथ ऊपर जो पहले करेगा हाँ, डन एंड पॉइंट्स गिनते जाना पूजन भाई। डन, ओके, मैं करता हूँ। जो राइट आंसर दिया डन और जो रॉन्ग आंसर दिया उसका -1। अरे नहीं वो हाँ, वैसा मत करो भाई। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन हाँ प्लीज यस। माइनस मार्किंग तो एग्जाम में कुछ ऑर्डर भी कर लेते हैं। हाँ, कुछ फूड अगर आपको जो ऑर्डर करना है। ऑर्डर कर देते हैं। उनको बोलना है को बता लो। खाली नीचे थे ना, क्या ना ऑर्डर लेना आ जाओ। ऑर्डर के पहले खाली बोला ही ना। So after this section we are done. या डन, खत्म। एक्चुअली मतलब खत्म ही नहीं हो सकता, इसलिए हमने फ्लो बना लिया था। Exactly. या स्पेन के पास स्ट्राइकर नहीं है। अरे फेरन टोरेस है ना।